all the members of IVA who have joined today for the webinar. To begin the proceedings, may I now invite Shri S. Das sir, President of All India Wellness Association, to deliver the welcome address. Das sir. Thanks, Harshit. I'd like to welcome all of you in today's webinar. Today, Mainak Ghoshal from Kolkata will be our speaker, and he will talk about some MSME valuations. I'm sure all of you will get benefited out of it. Mr. Sujata Biswas from Jaipur, he will also talk about some different valuations regarding 34AB and IV valuer. So just after the over of the speaker of Mainak, he will start speaking. He will take some 10 minutes. Now I like to tell one thing. From last 2 months, we are requesting all the valuers to come forward because we'll be requiring one technical team to look after there to deliver all these technical speaker, because this is our permanent project. On each and every first Saturday of the month we organize it. So no doubt we'll be requiring some good speaker. So if we have around, today we had issued one membership and the membership will be 478. So at present we are having 470 members. So out of that, at least from each and every state, we have covered around 14 states of India as of now. So at least from 14, we should have 14 valuers members, so that we can have a technical team to discuss the various issue. So we have sent it through mail. Now through these platforms, I'd like to request all of you to suggest their name. But condition is that they should be the experience in speaking. So at least they should take one monthly webinar. So just mail us. If you find your name suitable, then we will keep your name in the technical committee, which will be published in our technical souvenir also, which is going to be published on the occasion of our 5th national seminar, proposed to be held on 8th November 2025. I'd also like to request all of you. Last time also we had a gathering, good handsome gathering were there. Still then, I expect at least 150 valuers should join us in this seminar. So just block the diary, note down this date, 8 September, and we had this time we had registration fees, we had kept it for 2,000 rupees. So it will be better if all of you will contribute for this cause. In this seminar, the proposed seminars, we are also going to, apart from the technical subject, we'll also we'll discuss about the various problems of the valuers, and not only problems, but how to solve it out. So this will be some additional sessions will be there for half an hour, so that the valuers of different part of the country can speak their problems, and also suggestions will come to how to overlook it. So now I like to end this. One more point I would like to say. Our General Secretary K.K. Upadhyay, due to his father is not well. His father will get operated in Banaras on 10th of this month. So he'll be busy. So in place of Upadhyay, Lalit, who is our Joint Secretary, will be officiating our as a General Secretary for 5 to 6 months. So I'll also like to welcome Lalit also, because this will be the first technical webinar in which he will officiate as a General Secretary. So I'd like to welcome Lalit. I'd also like to welcome our Chief Guest Sir Yadav Sir, Suryakant Yadav Sir, Suryaprasad Yadav Sir, who is the Deputy Commissioner of Industry. He's very close to me, and he's very helpful in nature. So I'm sure he will also speak something about the valuers. He's a PCS officer and he was senior most. So I'm sure he will also, he loves all the valuers, all the professions, he loves value professions. So I'm sure he will also talk something about us also. And he will also give some future program of the valuers, so that how the valuers will get benefited in the government of Uttar Pradesh also. So now I'd like to request to continue, proceed further. Harshit, please come forward and take
So next. Thank you, sir. So next, I will request Shri M.K. Srivastava, Vice President of IVA, to kindly introduce our chief guest for the evening. Thank you, Ashit. I have been given the responsibility to give the brief introduction of our chief guest, Mr. Surya Prakash Yadav. I welcome Mr. Surya Prakash Yadav. The brief resume that right now he is Deputy Commissioner Industries, having office at the Joint Commissioner Industries, Kanpur Nagar. Regarding qualification, he passed out BSc, then he completed his MA, then BA, and qualified NET. Previously, he was working as Assistant Commissioner Industries at Kanpur. During the period from 2016 to July 2022, he is CCS of 2015 batch. Earlier, he was selected as Commercial Assistant, I think, CA, Indian Railways. This was the brief introduction of our chief guest. Now I hand over to again Mr. Harshit for further action. Thank you, sir. Sir, it's now my honor to welcome our esteemed chief guest, Shri Surya Prakash Yadav, Deputy Commissioner Industries, to deliver his address. Sir. हेलो, नमस्कार सभी लोगों को। मैं पहले एमएसएमई की चीजों को बताना चाहता हूं आपको, जो स्टेट गवर्नमेंट यूपी जो काम कर रही है आज की डेट में। तो सबसे पहले जो यूपी में जो इशू आता था वो लैंड रिलेटेड इशू आता था। तो यूपी ने सारे डीएम को, यूपी गवर्नमेंट ने सारे डीएम को बोल रखा है कि वो अपने अपने एरिया में जितनी भी जीएस लैंड है, मतलब ग्राम समाज की लैंड है, वो लैंड को एक्वायर करके वो स्टेट गवर्नमेंट को दें ताकि वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दी जाए। अभी तक कई डिस्ट्रिक्ट में लगभग 500 एकड़ जमीन हमें मिल चुकी है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल लैंड बैंक के नाम से एक नई स्कीम चलाई है। उसमें ये कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 100 एकड़ का चक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को निःशुल्क दिया जाए। तो उसमें सारे इंडस्ट्री वालों का डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि सारे इंडस्ट्री का एक हब बनेगा। उसके अलावा एक और स्कीम लॉन्च की है, उसमें ये कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट के पास लैंड नहीं होती है और किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास भी अगर 10 एकड़ से ज्यादा लैंड होती है तो उसको सरकार 50 लाख पर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट उसे पैसे देगी, जिससे वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। केवल कंडीशन ये रखी गई है कि वो सिर्फ एमएसएमई यूनिट को देना है। तो ये सरकार की तरफ से आपके गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट द्वारा हर व्यक्ति के लिए, इंडस्ट्री के लिए यूपी में लैंड अवेलेबल कराने के लिए दोनों प्रयास किए जा रहे हैं। फाइनेंस स्कीम हमारी बहुत है। फाइनेंस स्कीम में तो ओडीओपी, अगर यूपी से बाहर के भी लोग हैं तो उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट जिसके लिए वो जिला जाना जाता था, उस जिले में उस प्रोडक्ट के लिए बनाने से लेकर के उसे एक्सपोर्ट तक करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए, जैसे काला नमक चावल यूपी में हुआ करता था, उसको स्पेशल पहचान देने के लिए, वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए उस प्रोडक्ट में गवर्नमेंट पूरा सहयोग करती है। इसी टाइप की छोटी स्कीमें हमारी पीएमजीपी जो पूरे इंडिया में चलती है, MYSY, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्पेशली युवा मतलब 18 to 40 को यूपी में बहुत टारगेट किया जा रहा है कि इनको कुछ अच्छा इंडस्ट्री में कराना है। तो हमारी स्कीम स्पेशली टारगेट इन्हीं के लिए आती है। हर आम आदमी को तक लोन पहुंचे उसके लिए नई स्कीम MYSY तो बड़ी स्कीम है। उसके बाद छोटी एक स्कीम लॉन्च की है, CM युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें हर मतलब किसी को न्यूनतम 5 लाख रुपए तक के लिए बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उस पर कभी भी कोई ब्याज नहीं लगेगी, कभी भी कोई ब्याज नहीं लगेगी और उसके पास 10% सब्सिडी दी जाएगी। और इसका अगले 10 साल में 10 लाख का टारगेट दिया गया है।
कि हर साल 1 लाख लोगों को हम छोटे मोटे काम ये दिलवाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूनिट कोई लगाते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो एमएसएमई पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी 2022 स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें हम सीधा उनको कैपिटल सब्सिडी 15% तक देते हैं। मान लीजिए किसी ने, मैक्सिमम उसकी लिमिट 4 करोड़, किसी की यूनिट चल रही है तो टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए अगर कोई हमारे यहाँ क्लेम करता है तो उसको हम 5 लाख रुपए या मैक्सिमम 50% वो भी देते हैं। उसके अलावा जो सबसे अच्छा काम हो रहा है कि हम जो माल एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको बायर कहाँ से ढूंढें, तो दोनों तरह से सुविधाएं दी गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे यहाँ के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो जा रहे हैं, उनको आने जाने का किराया एवं वहाँ स्टॉल बुकिंग, B2B, B2C किसी भी तरह की मीटिंग है, किसी भी हर तरह की सब्सिडी दी जाती है। उससे बड़ा एक और काम हो रहा है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यूपी में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। इस साल भी वो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो किया जा रहा है, जहां 100 से अधिक देश के बायर को बुलाया जा रहा है ताकि यही बिजनेस मीटिंग हो जाए और हम लोग उनको प्रोडक्ट दिखा सकें। तो हमारे उत्तर प्रदेश से हजारों स्टॉल होंगे, वहां पर विदेशी बायर को घुमाया जाएगा और विदेशी बायर से मीटिंग कराई जाएगी। तो इसके तहत पिछली बार भी हमारा जो निर्यात का टारगेट था उसमें काफी बढ़ोतरी हुई। इस बार भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और ये 25 सितंबर को नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा। एक और है, जैसे कभी माइक्रो स्मॉल यूनिट का जो पेमेंट फंस जाता है, डिले पेमेंट के लिए बोलते हैं, तो अदर स्टेट में भी है वो फॉर्म जो MSME 2006 एक्ट के तहत माइक्रो स्मॉल फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी। लेकिन और प्रदेश में कहीं एक काउंसिल है, कहीं एक से अधिक भी है। हमारे जो स्टेट में किया गया है वो हमारे स्टेट में डिवीजन वाइज काउंसिल को कर दिया गया है। तो हर डिवीजन में मतलब 18 काउंसिल हमारे यहाँ बनाते हैं। हर डिवीजन में एक काउंसिल है, क्योंकि काउंसिल के जो भी एक डिवीजन का एरिया होता है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के लोग उसी डिवीजन में आके केस कर सके ताकि उन्हें आने जाने में इन सब समय में बच सके। और उसको भी अब भारत सरकार ने ODR सिस्टम से कर दिया है। तो हमारा जो स्टेट का है, मतलब चाहे लैंड देने से लेकर के हो, चाहे कोई NOC सारी ऑनलाइन कर दी है निवेश मित्र के माध्यम से, लैंड देने का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे मार्केट ढूंढने का हो, चाहे मार्केट ढूंढने में एक्सपोर्ट तक, या कहीं किसी की पेमेंट फंस जाती है तो डिले पेमेंट को दिलवाने के लिए सारे को लगभग एक फोरम पर लेके आए। लेकिन आप लोगों की रिपोर्ट, आप लोगों की मीटिंग थोड़ी वैल्यूअर वाली भी है, तो वो भी मैं बताना चाहता हूँ। जब हमारे यहाँ DIC में इंडस्ट्रियल स्टेट होते हैं, DIC होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, उससे जुड़े हुए इंडस्ट्रियल स्टेट होते हैं। और मैंने अभी भी बोला है कि काफी नए 100 एकड़ के इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत, जो हमें जानकारी नहीं होती, वो जानकारी आपसे लेनी होती है हमें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम इस लैंड पर जो बिल्डिंग बनी है और उसकी कॉस्ट कैसे निकलवाएं, एवं अन्य प्लांट मशीनरी में भी। तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होती है, क्योंकि स्टाम्प विभाग कुछ अलग नियम जारी कर देता है, स्टाम्प विभाग उसको कैलकुलेट नहीं करता, बाद में सिर्फ नोटिस जारी करता है। हम लोगों को पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हम उस बिल्डिंग की, उस प्लॉट की, तो प्लॉट की रेट तो हम सर्किल रेट से निकाल सकते हैं, लेकिन प्लॉट प्लस बिल्डिंग के एक्चुअल जो भी रेट होता है वो हम आपसे ही पता करवाते हैं। तो आप लोग नए नए नियम सारे जानते ही हैं पहले से, तो उन नियमों के माध्यम से हमें ये बता देते हैं और ये अवगत करा देते हैं, तो हमारा वो काम आसान हो जाता है। बट आप किसी इंडस्ट्री की लैंड की वैल्यू बता रहे हैं और उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट बता रहे हैं, तो आप हमारे पोर्शन को और उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि MSME की सारी स्कीम जो इंडस्ट्री वाला आपके पास आता है तो उसको हमारी स्कीम भी बता सकते हैं, जिससे उसका और ज्यादा बेनिफिट होगा। दास साहब, मेरा तरफ से यही था। अगर कोई और स्पेशल क्वेश्चन हो तो मैं स्पेशल उस टॉपिक पर बोलूं। नहीं सर, आपने अच्छा सुझाव दिया सर, हम लोग हम ध्यान रखेंगे सर आपका। तो बहुत धन्यवाद। आप तो सर रुकेंगे ना अभी? हाँ, मैं हूँ अभी एक मीटिंग मेरी है,
वो शायद ऐसे 7 के आसपास है। अगर मैं चला जाऊंगा तो आप संभाल लेना मेरी तरफ से। नहीं सर, आप जाने से पहले ना सर्टिफिकेट आप डिस्प्ले कर दीजिएगा। ठीक सर्टिफिकेट ठीक ठीक। ठीक सर, थैंक यू सर। Thank you, sir, for those inspiring words. Moving forward, I invite Dr. Mukesh Kumar Singh, Chairman, IEI KLC, to address the gathering. Thank you, sir. On behalf of the Institute of Engineers, Kanpur Center, as well as on behalf of IIM, I would like to welcome all dignitaries who are attending this webinar today, the first Saturday of September 2025. I am also thankful to Surya Prakash Yadav ji, who delivered very valuable information regarding MSME. He discussed about various schemes which are at present floated by our state government. And I would like to welcome Professor Manik Ghoshal. He has joined from Kolkata, and he is going to deliver his talk today on the evaluation of MSME assets. Something topic is like very close to this. And IVA is doing a wonderful job. Every month they are inviting a dignitary as a chief guest as well as one lecture on very valuable topic that is very much related to the valuers. So in this way, IVA is doing a wonderful job. I welcome all dignitaries once again who are present here, as well as today's invited speaker, Professor Manik Ghoshal. Thank you. Thank you, sir. Next, I invite Sri Vivek Mishra, Chairman of IIMA Lucknow, to introduce our guest speaker. Vivek Mishra, sir. वही व्रत उनको दिखाओ ना। की आवाज नहीं आ रही, बोल ही रहे। आपका नहीं सुनाई दे रहा? आवाज नहीं आ रही? ना ना, नहीं आ रही, नहीं आ रही। क्या हो? यहाँ से सर इसको पिन कर दिया करिए, पिन हो जाएगा तो उनका माइक म्यूट है इसलिए नहीं आ रही। I think sir has left the call, I guess. नहीं, अब लेफ्ट है और फोन कर दिया हूँ, उनका कोई टेक्निकल इशू तो अभी तुरंत आ रहा है। Okay, sir. वो भी So your mic, yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Yes, Sri Manik Ghoshal is a highly respected valuer, author and structural engineer based in Kolkata, West Bengal, with more than 60 publications. Okay, he is known for his expertise in both immovable property and movable properties valuation, catering to the both banking sectors and private clients. He made significant contribution to the field of valuation and structural engineering, which earned him an honorary doctorate from Canadian University in St. Lucia. His dedication to research and professional excellence has earned him numerous accolades and recognition with the industries. Thank you, sir, for the introduction. Yes, thank you, sir. And now, we are now privileged to hear from our guest speaker, Professor Manik Ghoshal from Kolkata,
who will enlighten us on the lecture on the topic MSMED Act, an untapped advantage for valuation professional. Over to you, sir. Thank you. We will just clear the screen. Right. स्क्रीन पर ध्यान दीजिए Is the screen visible? Yes, yes. Visible. MSMED Act and untapped advantage just of figure said professionals valuation and act now. Myself, Munyan Gusal, I became a certified independent consultant. Introduction. MSME is the backbone of Indian economy. 30% of the GDP comes from this MSME sector. 50% of the exports comes from this MSME sector, and 11 crore jobs out of 140 crore Indians comes from this MSME sector. The valuation professionals often overlook this MSMED Act of 2006. There are opportunities and they fail to leverage the legal, financial and institutional benefits of this Act. Now, Act key features of the MSMED Act define the micro, small and medium enterprises based on investment and their turnover. Mandates time payment, but in within 45 days we have to pay, otherwise the MSME Act will take over. And we valuation professionals, we know how hard it is for us to get payment from the banks. For 45 days, 145 days pass, 245 days pass, 365 days pass, nothing happens. And you know, MSME Act ensures interest on delayed payment. 3 into the RBI interest rate. If the 6% is interest rate, then we get 18% interest after delayed payment. I will come in the details. And establishing a facilitation council for dispute resolution. Now, what is facilitation council? It's a joint venture between the state government and the central government, where the state government helps to get the delayed payment in that way. And each state has their own facilitation. West Bengal has their own facilitation council. UP has UP facilitation like this. Now, MSME key features. Micro enterprise. This 2006 Act says investment up to 1 crore or turnover up to 5 crore. This is micro enterprise. Previously it was not 1 crore. Just less 5 lakhs or something like that. I forget the exact amount. Small enterprise now active leap forms into crores. Up to 10 crores and in turnover up to 50. 10 medium enterprise investment up to 50 crores and turnover up to 150 crores. So this is the jump in crores with the turnover. And we have valuation firm, we know how small our turnover is. We barely get 20 or 10 valuations per month. And if we convert in turnover, it will not come to less, neither crores. So this is the gap. So this valuation promotion will be overall negative MSME Act. But we should not do this. It will come. Understanding the MSME Act, it has been enacted to promote the development and competitiveness of MSMEs, where the framework for defining, supporting and regulating MSMEs aims to foster entrepreneurship, create jobs and boost economic growth, significant rise in enabling MSMEs to thrive in a competitive environment. Now, one of the valuation professionals play a critical role in assessing the economic worth of assets and liabilities, that is, we provided independent and objective opinion for value. Expertise is vital in finance, investment, and legal and other sectors. Ensure transparency and fairness in transactions, as well as valuation facilitate informed decision making and efficient issue allocation. Their work underpins trust and confidence in the financial system. The connection between the MSMED and valuation. MSMED directly impacts the work of valuation professionals by creating a demand for value services among MSMEs seeking funding, merger for acquisition. Because for funding we need valuation, merger we need valuation, repairing compliance with valuation standards in certain transactions. As for banking transactions, we have IVSC, enhancing valuation practices to increase focus on MSME specific sectors.
encouraging innovation, valuation methodologies to attend the unique activities of MSME, providing opportunities for values contributing to growth and development of MSME. Now, current market landscape, MSME is characterized by a large and diverse sector, so a diverse sector contributing significantly to GDP and employment, starting from this horticulture to this gown making or this artisans to the IT sector to the community MSME is vastly diversified at present, but it contributes to GDP and employment. But as of now, technology and e-commerce has been changed or forefront of this MSME. A growing demand, but it is need funding and investment in the MSME sector. And there are many untapped opportunities for valuation professionals to provide specialized services in this MSME sector. They need valuation, for like in company valuation, we need valuation every year. So MSME, so they also need valuation for the funding yearly basis. So case studies reveal significant growth potential of MSME. We have come to the case studies for valuation and financial planning. The challenges faced by MSME, several key challenges, access to finance. This is a direct challenge because adequate funding from banks is very difficult. Complex issues, complex regulatory requirements and complex burdens on MSMEs. Market entry, there are entry barriers in MSME. But now this MSME somehow has this entry barrier has somehow they have minimized this entry barrier. This MSME somehow is coming with it. And also lack of awareness on what is MSME. Just which I told the valuation process almost neglect MSME. So these things have to be overcome these challenges to provide or assessment of value. Now opportunities for valuation professionals. Specific opportunities, advisory roles can provide setting advice to MSME on financial planning and growth. Can provide funding by doing valuation to support loan application and investment proposals. They can perform valuation for the mergers, acquisition, restructuring of MSME firm. They can also help in dispute resolution regarding MSME transactions by valuing the assets. And of course, compliance valuations are there. Regularly, regulatory valuation. Now, this is a case study. Consider a small manufacturing unit that sought funding for expansion. A valuation professional conducted through valuation highlighting the unit's assets and growth potential. The valuation report helped us to secure a loan from the bank under the MSME Act. The funding enabled the unit to expand its operations, increase production and create more jobs. This is the objective. To expand the operation of the MSME firm, to increase the production of the firm and to create more jobs for the firm. This is the main objective of the MSME. And it's 30% GDP, 50% export, 11% job. This objective has been served by many MSMEs. So this type of data can be sustained. This demonstrates the tangible impact of professional valuation on the MSME growth. Now, best practice for valuation professionals, which include tailoring valuation methods to MSME needs concerning the unique characteristics, conducting due diligence and distance and its market, using appropriate valuation techniques such as discounted cash flow, DCA, market capitalization, and asset-based cost approaches, providing clear and transparent valuation reports that are easy for MSME to also understand. Staying updated, just we had there are different banks have different reports. Now MSME comes, they have another set of different reports. So this creates complexity. And these things have to be taken care of so that the MSME does not create extra burden or extra complexity for our valuation professionals. Staying updated on the latest techniques and guidelines related to valuation. Regulating the MSME Act for computing advantage can be done, valuation can do, positioning valuation and offering tailored services, marketing, targeting MSME with marketing messages that highlight the benefits of service offering, developing innovative service offering that address the service networking, building negotiations, government agencies and other stakeholders. Now, what we are doing on our webinar, we are simply networking.
and some are marketing. So this networking and marketing are the leveraging act for the valuation professionals through this MSME 2006 Act. We can say that. So by effectively utilize MSME Act, the professionals can enhance their market presence and attract more clients. Because MSME are coming, growing day by day. And valuation professionals have to, step up or have to boost up this growth through positioning, through marketing, through offering services, through networking. This is thing. The future trends for MSME value chain include increased focus on technology and innovation, growing adoption of digital platforms and e-commerce for growth, rising demand for sustainable and socially responsible businesses, greater emphasis on data analytics and business intelligence, can adapt these changes by incorporating these factors into the valuation models. Engaging stakeholders, building relationships. Effective engagement and stakeholders involve building trust and rapport through open communication and transparency, understanding their needs and challenges, and provide tailored solutions. These valuation programs can collaborate with our professionals, accountants, lawyers, and consultants, prepare high-level industry and network opportunities by fostering strong relations. Professionals can enhance their opinion and expand their network. Call to action. Act now. Don't ignore MSME statutory benefits, and within 45 days you have to pay this statutory benefit. And no other act in India at present are so strong that if you are an MSME and if you go through MSME, banks or whatever the clients are, they have to pay within 45 days. Add value to your valuation practices and empower MSMEs, strengthen economy and grow potential. This is call to action. No, this is the MSME Samadhan. This is application to MSME Facilitation Council. I was saying that every state has this MSEFC, from a migrant facilitation council. In the West Bengal case, registration Uddam, this is my registration number, my date was 2023. He was in dispute 2024. They told my name, address, state West Bengal, district Kolkata. Phone number of the things, what contact date 7/2/2024, invoice date 8/2/2024. Now here I have given my consent that once I award the things, the unit, my name. Do you want to send the application to MSE, Micro Small Enterprise Facilitation Council? You can say to the corporate, then all the things respondent. Yes, yes. I declare this to for knowledge. I was the petitioner 23/04 last year in month of January, March 18. This was done the Facilitation Council. But before Facilitation Council, what are the steps? I will come. The conclusion is the MSME Act provided a supportive framework for MSME in India. The government plays a critical role in the MSME sector. MSME Act plays significant role for valuation professionals. By leveraging the MSME Act and as the best practices, valuation professionals can untap or unlock the untapped advantages within the MSME framework. Now, this is my Udyam MSME registration certificate. You just go to the website and you can create the certificate. It requires no costing. Just if you take half an hour or 45 minutes to do this, to get this certificate, very easy. This number is a Udyam MSME registration number. All those details are there. Now this thing is how to address. First is grievance register through MSME. This you go to the MSME portal. If the bank is not paying you, and it is significant amount, 50,000 or whatever it is, you go to the MSME portal and it will be this dispute to be decided within 30 days. And if it is not decided, then the application process, automatically, if the process to the first, you have to be an MSME, you have to get a certificate. I was just saying. It automatically gets processed to the Micro and Small Enterprises Facilitation Council, MSEFC. This MSEFC is very powerful. And it acts, in my case, I can tell you, the bank, Union Bank of India as well, it was not coming. They took 3 hearings it was accepted, Union Bank, and now it is gone to the arbitration. It is so much powerful. This this Facilitation Council, the MSEFC, Micro Small Enterprise Facilitation Council. So, then
Now this Samadhan, I will show you how it works. Yeah. This is the Samadhan, this micro small medium meter. Direct payment monitoring system. Each and every case is being studied by Modi and Amit Shah. I can tell you this. Such a strong. This micro and small medium. It is perfect. So now how to enter? Previously it was Udyog Adhyayam number. Now it is Udyog registration number. I was showing my registration number. It is Udyog registration number. I am clicking here. Now they are asking for the Udyog registration. My shape is Udyam 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 WB 10 009035 009038. Now this is data capture. MP small m small p d small x t small k. Now I have to log in. Yeah. Save. Serial number 1, application number, this one is my registration number, here is my registration, 001 case number, first case, council name, MSC, micro, small, level, credit commission, Kolkata, registration name, myself, application date, amount here 30,000. Data is converted into case. Case is pending. Hearing details, proceeding is not because different state council have different culture. So in West Bengal, they are not given this detail to proceeding. I don't know other states what they do. But we are proceeding it, converted into arbitration case. I say. So, thank you. Yeah. Thank you. Welcome. Any questions? I will wait. Thank you, sir. The display body should work. No, sir. Do it. So, जल्दी खत्म हो गया. अभी डिस्प्ले कर रहे हैं इसका जल्दी खत्म हो गया ना. हाँ जल्दी खत्म हो गया इसका. अभी वो डिस्प्ले सारे डिस्प्ले कर रहे हैं. अच्छा पढ़ लीजिए सर सर्टिफिकेट उसका जल्दी खत्म हो गया. मैं ऑन करता हूँ. हाँ जी. Sri Mehmet Bhusal has successfully contributed through its presentation on MSME Act and untapped advantage of solutions. Professional act now. In the technical Webinar held on the 6th September 2025 on behalf of Organizing Committee Council, I, Sri Surya Prakash Yadav, Deputy Commissioner Industries Kanpur Division, thankfully acknowledge the valuable support and wishes all success in future. Thank you. thank you, Sir, sir. I like to thank our chief guest who has spared his invaluable time and join us. So I am sure since he is in some senior post, he will take care of our valuers. He will help our each and every moment. Thank you, Yadav sir. Next, Harshit. Yeah, always welcome, always. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, now I will request Sujata Biswas of Jaipur to discuss about on the topic 34 AB versus IBBI valuer. Sir, over to you.
हटा दो इसको। Sir, your mic is off. Yes, sir, now you're audible. Sir, voice is not coming out. Your mic is on, but no voice. Sir, it's still not there. Sir, the issue is still, I guess there is some still issue. Yes, sir, now it's on. आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, बस मैं इनिशियली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट क्लैरिफिकेशन ऑन दिस न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में 2025 वाला जो इनकम टैक्स बिल के अंदर नथिंग टू डू विद आईबीबीआई वैल्यूएशन एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट आईबीबीआई वैल्यूअर्स और एनीथिंग जस्ट आई हैव टू क्लैरिफाई अबाउट समथिंग सम मिसकंसेप्शंस गोइंग ऑन in the social media and discussions with our own colleagues in different social platforms about this valuers registered under 34AB, that means Wealth Tax Act and new income tax bill 2025 जो कि अभी गेजेट नोटिफिकेशन के बाद ऑलरेडी एक्ट का रूप ले चुका है। बेसिकली आवाज आ रहा है? आ रहा सर। वो आपका आवाज आ रहा है सर। समझ आ रहा है ना? मतलब कोई जो लाइक लॉ पर निकाल दो टू क्वेश्चन मैं पहले बताना चाह रहा हूँ इस तक का कंफ्यूजन चला जा रहा है। ये डिस्कशन इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए आज की तारीख में सिचुएशन है वो ये है वी हैव टू हमको हमारी खुद की पक्ष रखने पड़ेगा बेसिकली वी हैव टू टेल अबाउट आवरसेल्फ बिकॉज़ बिल से बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस है एंड देयर आर टू सेपरेट वर्टिकल्स आर देयर only 34 individuals and the IBPM both are basically meant for different purposes जो कि गवर्नमेंट एंड कोर्ट बार-बार क्लैरिफाई कर चुका है दोनों के बीच में कोई क्लैश नहीं। In fact, many of us are registered in both the acts, IBPI as well as 34A. And देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो बात करते हैं जिसके अंदर प्रोविजंस है हमारी फाइनेंस रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वो ये है 34AB जो वैल्यूअर्स है रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स है वेल्थ टैक्स उनके साथ जो इनकम टैक्स एक्ट के रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उनको मिक्सअप किया जा रहा है। देखिए मेनी ऑफ अस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर बेसिकली वेल्थ टैक्स एक्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर मेनी ऑफ अस एंड दोस रजिस्ट्रेशंस हैज बीन डन वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है हुआ है हमारे वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के हिसाब से हुआ है। ओके सर दैट इज नथिंग टू डू विथ इनकम टैक्स 1961 which have been replaced by Income Tax Act 2025 as on today. दोनों अलग अलग चीज है। I think sir got disconnected. व्रत व्रत इधर आओ। हाँ ये मैं देख रहा हूँ हाँ मैं देख इसको कट करना हटाओ
ये देखो ये ज्वाइन हो चुके हैं ना ये, एडमिट के लिए आए नहीं है। का जो फॉर्मेशन है that has been covered under clause 514. clause 514 आपको पता है जब कोई भी एक्ट कोई भी जो एक्ट आते हैं उसके पहले उसका बाकायदा दोनों हाउस में डिस्कशन होता है, देयर इज सिलेक्ट कमिटी। तो इस बिल को भी व्हेन इट वाज इन फॉर्म ऑफ ए बिल, मैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 को बता रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया और वाइड डिस्कशंस। When select committee has come out with around 1200 pages का reports, select committee ने publish किया था in public domain. I have studied thoroughly that report, the only the valuers part basically. उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है जो किस टाइप का ऑप्शंस डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स उनके पास रखे थे और कौन कौन सा ऑप्शन उन्होंने एक्सेप्ट किया, कौन कौन सा ऑप्शन उन्होंने रिजेक्ट किया या कंसिडर नहीं किया। तो उसके अंदर कहीं भी सिलेक्ट कमेटी का जो कमेंट्स है उसके 34 EB के बारे में कुछ भी कमेंट्स नहीं है, ये इसको अपन रिप्लेस करेंगे या अलग से री-रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस तरह का कुछ नहीं है। इट इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इसको अपन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी क्लियर टू अस दैट 34 EB रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैव नथिंग टू डू विद इनकम टैक्स एक्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर 2025, नथिंग टू डू। दोनों दोज आर वेरी डिफरेंट थिंग, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अब बात करते हैं अपन इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो वैल्यूअर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बात चल रहा है, इन लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, ये ऑलरेडी वाज देयर। अगस्त 28 अगस्त 2023 को 28 अगस्त 2023 आज से रफली 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ वैल्यूअर्स दोबारा शुरू किए थे इन्होंने फॉर valuers to be registered for the purpose of clause 132 for income tax act 2061। वो क्या है? सर्च एंड सीजर के लिए बेसिकली। उसके लिए उन्होंने फॉर्म 6C और ये सब चीज कुछ नॉर्म्स लाए थे, दैट द नोटिफिकेशन इज देयर। उस नोटिफिकेशंस को इट वाज इन फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। बाद में जब ड्राफ्ट बिल आए और जो फाइनल वो हुआ है, मतलब एक्ट जो पास हुआ है, उस नोटिफिकेशंस को ये फॉर्मल रूप दिया गया इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल क्लॉज 514। बेसिकली दैट यस, ये बात जरूर है कि उस बिल का अंदर जो वैल्यूअर का रजिस्टर्ड हो रहा है, पहली बात तो दैट इज नथिंग टू डू विद 34 EB वैल्यूअर्स, बिकॉज उसकी पर्पस बिल्कुल अलग है। ऑलरेडी अगस्त 2023 से इनकम टैक्स कुछ वैल्यूअर्स का रजिस्टर कर रहा है फॉर द पर्पस व्हिच इज वेरी डिफरेंट, दैट इज फॉर सर्च एंड सीजर एंड डिफरेंट मिसलेनियस वर्क, डिपार्टमेंटल वर्क जो है, जिसमें वैल्यूअर्स चाहिए होता है। अराउंड 12-13 टाइप के एक्सपर्ट को उन्होंने रजिस्टर कर रहे हैं बेसिकली, नॉट ओनली वैल्यूअर्स बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स ना, जैसे ट्रांसलेटर्स है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है, अलग अलग एक्सपर्ट्स है, उसका डिटेल्स मेरे पास है बेसिकली। उसका एक अलग से फॉर्मेट है, वैल्यूएशन के भी अलग से छोटा सा फॉर्मेट है एंड एप्लीकेशन के भी अलग से फॉर्मेट्स है, उसमें क्वालिफिकेशन भी है। सो दिस इज नथिंग टू डू विद दैट। तो शॉर्ट में बोले तो हमको पैनिक होने का कोई दरकार नहीं है। कोई भी सोशल मीडिया में या कहीं भी डिस्कशंस में ये बातें हो रहा है, रजिस्ट्रेशन दोबारा करने पड़ेगा हमको और ये सब चीज अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अब मैं ये बातें के डिस्कशन का जरूरत ये पड़ा क्योंकि मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का अगेंस्ट पे कुछ बोलना चाह रहा हूँ। कुछ लोग जो है, आई डोंट नो व्हाट आर देयर पर्पस, वो लोग बैंक्स पे जाके वो जाके दोबारा ये सब बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ साल पहले इन्होंने ये बोलने की कोशिश किया था ये जो 34 जो वेल्थ टैक्स एक्ट रिपील हो चुका है, जबकि ना वेल्थ टैक्स एक्ट रिपील नहीं हुआ है। आज कोई भी जाके आप गवर्नमेंट वेबसाइट में जाके, स्पेशली इनकम टैक्स का वेबसाइट में जाके आप चेक करेंगे
तो कौन कौन सा एक्ट रिपील हो गया इसको डिटेल्स है ना, एंड कौन कौन सा एक्ट अभी ऑन फोर्स है वो भी दिख जाएगा उसमें। इस पे साफ साफ मैंने क्रॉस चेक किया हूँ, कल ही क्रॉस चेक किया हूँ, जो अपना वेल्थ टैक्स एक्ट इज नॉट रिपील्ड, इट इज देयर, ओनली थिंग वेल्थ टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड फॉर नाउ। ओके सर, सो देयर आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स बेसिकली। तो उस पे हम में से जो लोग इनकम टैक्स के अलग से रजिस्टर करना चाहते हैं, जो लोग नहीं किए हुए, कई लोग कर चुका है और कई लोग नहीं किए हुए फॉर द पर्पस ऑफ सर्च एंड सीजर्स, मतलब क्लॉज 132 के अंदर जब सर्च एंड सीजर्स होते हैं, जब इसको सीधा बोलते हैं हिंदी इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, जहां पर छापा पड़ता है उसके पर्पस के लिए वैल्यूज के लिए जाते हैं कई बार डिफरेंट वैल्यूज उसकी है। तो हमको जो करना पड़ेगा सर, सोशल मीडिया में हमको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। कोई आदमी कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कहीं जगह, हमको उसको अपोज करना चाहिए तो जवाब देना पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। चुप रहने से क्या होगा, दो ईयर सेफ, बट एक नोशन फैला दी जाएगी कि इसको रजिस्ट्रेशन दोबारा करने पड़ेगा और समथिंग लाइक दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली सम ऑर्गेनाइजेशंस दे आर कमिंग आउट विद नोशन। जो लोग सिलेक्ट कमिटी में भी गए थे, सिलेक्ट कमिटी में गया था विद डिफरेंट मोटिव, जो भी उनका था, दोनों क्या मोटिव था उनका, कई टाइप का सजेशन उन्होंने दिए थे, बट फॉर्चुनेटली द वाइस सिलेक्ट कमिटी हैज नॉट कंसीडर्ड द सजेशंस, जिसके अंदर शायद ये भी था ये सब इनकम टैक्स के साथ साथ इनको भी ले लिया जाए एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रजिस्टर द वैल्यूअर्स, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा मैंने पढ़ के समझ में आया। सो इन ए शॉर्ट, हम जो 34 EB वैल्यूअर्स है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स है, उनको टेंशन करने का कोई दरकार नहीं है। वी आर सेफ, वी आर एज इट इज, वी आर एज इट इज। और दूसरी बात ये है, ये हमारी कई जगह एक कंफ्यूजन और है कि हमको दोबारा रिन्यूअल करना पड़ता है। ऐसे कुछ नहीं। वेल्थ टैक्स एक्ट 1AD के अंदर जो क्लॉजेस है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है, हम कोई अगर चीज गलत काम करते हैं तो हमारे नाम लिस्ट से हटा सकते हैं आफ्टर प्रॉपर हियरिंग। सो आवर रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन, बट वेल आवर रजिस्ट्रेशन कैन बी रिव्यूड इन ईच 3 years, 3 साल में रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद लगता है उनको ये यार बात में ठीक नहीं है तो हटा सकते हैं नाम, बट ऐसा नहीं कि रिन्यूअल करने पड़ेगा। रिन्यूअल का कोई क्लॉज कहीं भी कुछ नहीं है। एक तो पहली बात। दूसरी बात जो मेन बात इसमें मुद्दा बात ये है, ये हमको अगर चीज सोशल मीडिया में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में कोई ऐसे कुछ इनकाउंटर करते हैं जैसा वैसा इनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा, ये है हमको इसको अपोज करने पड़ेगा। तो कहीं मैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर्स हूँ पूरा भारतवर्ष में, ऑलमोस्ट कई जो एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके अंदर कई बार मैंने ये चीज को देखा हूँ, ये लोग एक भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट से कई लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने फोन किया मेरे को, मैंने उनको क्लैरिफाई किया एंड सेम सजेशन दिया, सेम चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज मैंने उनको बताया। और ये सारे चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने सारे पढ़ के जितना मेरे को समझ में आया, कोई हेयर से नहीं है कहीं सुन के बता रहा हूँ, नहीं, सारे पेजेस एक एक लाइन पढ़ के जो इन्फ्रेंसेस है मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सर ऐसा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जो 34 EB वैल्यूअर्स है और मे भी है, तो दो अलग अलग चीज है, दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। IBBA वाला अपना काम कर रहा है, हम अपनी काम कर रहे हैं। हम में से कई लोग जो है 34 EB भी है, IBBA भी है, सो फेयर एनफ, लेट अस सर्वाइव एंड ग्रो टुगेदर। बस ये रिक्वेस्ट है मेरा बेसिकली। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द सीनियर 34 EB वैल्यूअर होल्डर्स, जो आप रजिस्ट्रेशन होल्डर्स है, सर साइलेंट मत रहिएगा कोई व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर हमारे खिलाफ कोई भी इस टाइप का कुछ दुष्प्रचार कहीं भी है कि इसको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा, या इस टाइप का दुष्प्रचार और हो रहा है, जैसा इनका कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि इनका कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, फर्जी है। अरे भाई एक चीज बताओ सर, आपको भी पता है जो लोग 34 EB वैल्यूअर्स है, पहले आपको बीटेक या बीआर्च को रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करने पड़ेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर में। उसके बाद 10 साल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा, जितना मैं समझ रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, आपको 1.5, 2 साल, 3 साल लग जाता है, कभी ज्यादा भी लगता है। That means 13 years has gone, you are already practicing, किसी फॉर्म में कर रहे हो आप। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, then you are approaching to the bank. I'm talking about the pre-IBBA era, जब IBBA नहीं था, then you are approaching to the bank. ओके सर। और ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग कि इनका कोई डिसिप्लिनरी कमिटी नहीं है, इनका कोई क्वालिफिकेशन, कोई पैरामीटर्स नहीं है, किस टाइप की बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है। That means what they are trying, the unfortunate part, I have to say, they want to say that the IBBA registered valuers are the holy cows. The holy cows, I repeat the word, they are the holy cows, and we 34 EB valuers are basically cheaters.
That is the basic. My objection is there. It is written in some WhatsApp group. Somebody have the screenshot of those actually. So इनको ये बात पता नहीं है कि हमारे खिलाफ भी डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लिया जा सकता है, इनका टेस्ट ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है, थर्ड पार्टी एंटिटी लिस्ट में आप देखेंगे 2018 का पहले कितने सारे वैल्यूअर्स के नाम आया, जो लोग 30 बड़ी के वैल्यूअर है थर्ड पार्टी एंटिटीज में, जो अपना जो आरबीआई मेंटेन करता है, आईबीआई मेंटेन करता है लिस्ट, ठीक है सर। सो इट इज गलत फहमी है इनका कि हमारे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कभी नहीं हुआ, हमारे ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला कोई लोग नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, ये बात बताना पड़ेगा सबको। इट इज देयर। सो दैट इज इट सर, बेसिकली ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Thank you, sir, for your inspiring words. Now, I will like to invite Shri Lalit Kant Mishra ji. No. Okay, sir. Now this is the time for open discussion. Before going for open discussion, I would like to thank Sujata Biswas, who is a very good friend of mine. Actually, this week we had carried out our council meeting, and next week we are going to organize our legal team meeting. So I am sure Sujat sir will be participating in that because he is also legal committee member. He is from Jaipur, Rajasthan. He has a lot of knowledge. Our Anand Singh, Vice President, is looking after the legal committee. So this week, next week we will discuss about the matter. Then we will issue one circular regarding the matter to our members and also ministry also. Meanwhile, if any of a member comes across such type of mispretension or some WhatsApp group, then just to inform it to the IVA or post it in the group. Because unless and until, actually your country is very large, so we will not be positioned to know, to go through each and every WhatsApp groups. So whenever you find that there is some mispretension or some happening in there, you just do inform to the IVA head office and we will do accordingly. Now next week we are going to organize legal committee meeting in which we will be deciding a number of factors. So in that, this will be one part of the one agenda, and then we will come out with some solutions. Now let's open the session for open discussion. Our Mainak is also there, Sujat Biswas is there, so they will answer if there is a question of any participants will there. Please carry on. Harshit. Yes. Any question to Mainak, please, fast. I think no question. Mainak? और वो क्वेश्चन में अगर दे आप एक क्वेश्चन आई विल आस्क यू, एक क्वेश्चन आप आस्क पूछूंगा। एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप पे ये चल रही है कि अगर बैंक से पेमेंट नहीं मिलती है, एमएससी में रेस्टोरेंट करें तो क्या 45 दिन में हमको पेमेंट दे पाएंगे? सर हमारा साथ ये हुआ यूनियन बैंक में, तो अभी तो केस आर्बिट्रेशन में आ गया है, तो कुछ तो थे, और फ्रॉम नॉट गेटिंग नथिंग तो कोर्ट केस में कुछ सब्सटेंटिव मैटर तो ले आएंगे आर्बिट्रेशन में, ये तो बता सकते नहीं। जैसे वैल्यूर का फीस मतलब डूब जा रही है, बैंक्स आर नॉट पेइंग द पेमेंट इन टाइम एंड इवन समटाइम्स दे आर नॉट पेइंग अनलेस एंड until they sanction the loan. So in that case, MSME will help us. नो एमएसएमई ऑफ कोर्स विल हेल्प अस एट वंस एमएसएमई में जो ये एक्ट में जो दिया है, ये वंस द बायर यूनिट एक्सेप्ट योर इनवॉइस तो ही हैव टू पे इफ यू आर एमएसएमई, ऐसे करके एमएसएमई एक्ट में। But here neither there exist buyer nor purchasers. We are the service providers. So we either are the service provider and the banks are the buyer of our services. तो you can consider bank as a buyer unit. तो buyer unit आपका इन्वेस्ट ले लिया, मतलब they are accepted, ये एक्ट यही कहता है। तो ये एक्ट है बहुत पावरफुल एक्ट है and it can do anything. now will it be applicable and favorable for valuer so that we can advise our members? The valuer have to register in the MSME portal as a MSME unit.
then only it will be applicable for the valuer. Otherwise, no. So what is the system of getting registered? Yeah, simple. I told you in my slide that you have to go to the MSME portal and you have to submit certain documents, Aadhaar and all those things, and you will get a MSME exam registration certificate. Whether some payment is required to be done there? No payment is required. Nothing is required. Free of cost. Okay. Because I am coming across a valuers so who are not getting payment amount of 5 lakhs, 6 lakhs like so. Some of members may be in this webinar. So will it be advisable for them to go for registration in this MSME? Very much advisable for them. You just type MSME in the Google and you will get everything. Go to the portal, MSME portal, and you register. Free of cost. Fill certain documents. Aadhaar, all those things. Upload it. Okay, thank you. Any question, please? सर मेरा दो हेलो आई एम ऑडिबल सर Yes, sir. Yes, sir. दो तीन सर मोइनक सर ने बहुत अच्छा एक वार्निंग इश्यूज पे बात की है मैं दो तीन चीज और ऐड करना चाहूंगा व्हिच आर बेसिकली एप्लीकेबल अप्लाइड इन नेचर सर पहली बात तो ये जरूरी है कि हर वैल्यूअर्स को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करना जरूरी है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वेरी इजी पहली बात तो ये फर्स्ट स्टेप सर सेकंड स्टेप जो है सर पहली बात हमारी जो जितना बिल जाते हैं सर बिल आते हैं ये कोर्ट का वर्डिक्ट भी है सर जितना बिल जाते हैं वंस वी आर रजिस्टर्ड विद एमएसएमई देन हमारे बिल का अंदर हमको एमएसएमई का नंबर्स जो रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम नंबर होता है इसको यूडीवाईएएम उद्यम नंबर को मेंशन करना हर बिल में जरूरी है कोई भी इनवॉइस हमारी चाहे जीएसटी इनवॉइस हो चाहे नॉन जीएसटी हो जरूरी है साथ में ये भी फुटनोट में जैसे हम लिखते हैं ना भूल चूक लेन देन ईएनओई वैसे ही साथ में फुटनोट में लिखना जरूरी है कि हम लोग एमएसएमई रजिस्टर्ड वेंडर है एंड एज पर द क्लॉज द बायर और द जो परचेस कर रहा है जो हमारे सर्विसेज परचेस कर रहा है दे मस्ट ऑनर द एमएसएमई एक्ट ये लिखना जरूरी है बेसिकली ये डिस्क्लेमर डालना हर बिल में जरूरी है दैट इज इंपॉर्टेंट सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक चीज जरूर ध्यान रखें ऐसे मैनेक सर अच्छा बता सकेंगे बट माय टेक इज दैट एमएसएमई का अंदर एमएसएमई डी का अंदर तभी भी हम कॉम्पीट कर पाएंगे यानी हम केस जीत सकते या हम केस को आगे बढ़ा सकते जब हमारे पास प्रॉपर वर्क ऑर्डर हो दो चीज हमको बहुत मस्ट है जो कि जिसके बिना हमारी केस को एक्सेप्ट करेगा भी वो खींच लेगा वो दूसरे वाला का वकील जो है ना वो केस को बर्बाद कर देगा वो ये है कि आपके पास वर्क ऑर्डर का भी कुछ प्रूफ होना चाहिए जहां पर आपको ये सर्विस देने के लिए कहा गया यानी वैल्यूएशन सर्विसेज दूसरा आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये सर्विस डिलीवर कर चुका है ऑन द फॉलोइंग डेट ये दोनों जरूरी है सर ये डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा सर और किसी फॉर्म में एंड दिस इज रियली ट्रिकी मैटर लेकिन हम जो वैल्यूअर जिस फ्रेम में काम करते हैं बैंक की उसमें दोनों चीज नहीं मिलता नहीं सर बहुत मुश्किल और एक बात सर बिल में बिल का इनवॉइस नंबर होना चाहिए यस नीता सिन्हा जी कुछ कह रही है नीता सिन्हा जी लखनऊ से हाँ ये मैं एक चीज एमएसएमई वाला जो मैनाज जी ने कहा है मैं उसके बारे में और जानना चाह रही हूँ मेरा ऑलरेडी एक उद्यम में रजिस्ट्रेशन है लेकिन वो किसी यूनिट के लिए है तो मैं फिर दोबारा मुझे कराना पड़ेगा या किसी व्यक्ति का 2 बार हो सकता है कैसे क्या प्रोसेस कर सकते क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है उस केस में मैं कैसे इस सर्विसेज का कैसे फायदा उठा सकती हूँ अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग में है तो आप सर्विसेज के लिए आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो हो सकता है नहीं चल रहा है वो सर्विस के लिए दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए अच्छा मतलब मेरी जिससे बात हुई थी जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था तो उसमें ये था कि एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही उद्यम रजिस्टर हो सकता है तो इसीलिए मैं अच्छा मैन्युफैक्चरिंग ओके मैं कुछ बताऊं नीता जी को हाँ जी नीता जी बताइए आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया और जो वैल्यूएशन
कर रहे हो, दोनों का फॉर्म नेम सेम है या अलग अलग? नहीं नहीं, अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। दैट मीन्स, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अलग अलग फॉर्म्स है, मेरा खुद की पर्सनल इंडिविजुअल नाम पे भी मैं रजिस्ट्रेशन कर रखा हूँ एमएसएमई में, एंड मेरा जो दूसरा फॉर्म्स है आर्किटेक्चरल फॉर्म्स है, वैल्यूएशन फॉर्म है, उसके नाम में भी रजिस्टर कर रखा हूँ। सो सीधा बात ये है, आप एक ही पैन नंबर के अंदर एक ही बात कर सकते हैं। पहली बात, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आप पार्टनरशिप फॉर्म या इंडिविजुअल है, तो आपके एक पैन नंबर है आपके नाम का, ठीक है। जब आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, पार्टनरशिप या एलएलपी करेंगे, तो एक आपका अलग से पैन नंबर होगा। ऑब्वियसली पैन नंबर इज डिफरेंट फॉर एंटिटी, ठीक है ना। तो उस केस में जैसे मेरे को समझ रहा हूँ, जैसे आपने एमएसएमई में ऑलरेडी कोई एसएसआई यूनिट या किसी का रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, मेरे ख्याल से कोई पार्टनरशिप फॉर्म होगा या कोई और कोई प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। नहीं, वो है तो फॉर्म है, बट हमारा वो इंडिविजुअली है, उसमें हमारा ही पैन नंबर लगा हुआ है। हाँ, उस केस में मैं आपको बताता हूँ। यस, दैट मीन्स सीधा बात ये है, आपने आपका पैन नंबर उसमें एम्बेड किया हुआ है, यही तो बात है ना। यस, हाँ बिल्कुल। आपके पास ऑप्शंस ये है, आप दोबारा लॉग इन करें आपका उसमें, और आपका सर्विसेज को एक्सटेंड करें। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल सपोज मेसर सुगता विश्वास, सपोज माय फर्म एंड आई हैव गॉट ए पैन नंबर, ठीक है, और मैंने अभी पहले वैल्यूएशन का काम नहीं करता, सपोज बात कर रहा हूं, एंड आई वाज ए एक्सपोर्टर या मे बी कुछ भी कोई मैन्युफैक्चरर, उसके नाम पे मेसर सुगता विश्वास के नाम पे मैंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, वहां पर वैल्यूएशन का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। अब मैं सपोज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, सपोज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स का मैं एमएसएमई बोला हूं। अब आई हैव स्टार्टेड माय वैल्यूएशन वर्क आल्सो, ठीक है, हो सकता है। देन आपको दोबारा लॉगिन करके आप अपना सर्विसेज को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। माय पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई गॉट। ठीक है, वो उसमें हमें, क्योंकि ये जो पॉइंट था, क्योंकि ये था मेरे दिमाग में कि एक आदमी एक ही रजिस्ट्रेशन, मतलब एक पैन पे एक ही हो सकता है। यस यस यस, दैट इज राइट, एक पैन। हाँ, तो मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस ही करती हूँ, तो ऑब्वियसली वही पैन हमारा सब जगह लगा हुआ है। तो ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। और ये प्रोसेस कितने टाइम पे हो जाता है? अगर इट इज रियल टाइम, खत्म हो जाता है। ओके, मैं लॉग इन करके उसमें सर्विसेज ऐड करती हूँ, तो उसको ऐड होने में टाइम, ये मेरा टाइम नहीं लगता है। जैसा गवर्नमेंट ने इस बारे में बहुत ही अच्छा प्रोसेस रखा है, इट इज बिल्कुल पेपरलेस एंड बहुत ही रियल टाइम है। बट ओनली थिंग इज दैट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर्विसेज जब आप जोड़ेंगे, है ना, तो उसका अंदर सर्विसेज का नंबर्स है, एक बहुत बड़ा बुकलेट है, उसमें आप एग्जैक्टली किस किस के सर्विस आप, देखिए मैं बता रहा हूँ, यू मस्ट ऐड, इनफैक्ट इट इज एडवाइस फॉर एवरीबॉडी। सपोज आप वैल्यूएशन करते हैं, आप सॉइल टेस्टिंग नहीं करते हैं, बात कर रहा हूँ, या सर्वे नहीं करते, मगर आप उस सर्विसेज को जोड़ सकते हैं, हो सकता है कल आप शुरू करें काम। बिल्कुल बिल्कुल, आप पता चला? बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली कि हम अगर इसी फील्ड से हैं, तो इस फील्ड से रिलेटेड और भी सर्विसेज हम कल को कर सकते हैं, तो हम पहले ही उसको ऐड कर दें। पहले ऐड कर लीजिए उसको, उसमें कोई इशू नहीं है, ऐड हो जाता है। तो बेटर ये है, जिस टाइप का सर्विसेज एज ए सिविल इंजीनियर और एज आर्किटेक्ट, आई डोंट नो व्हाट यू आर, तो जिसके हिसाब से आपका जो साथ में जो जुड़ा हुआ जिस टाइप का सर्विसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है उसको आप नहीं देते होंगे, है ना, मगर उसको आप जोड़ लीजिए, अभी जोड़ लीजिए दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका दोबारा पैन लाना पड़ता है, और एक पैन लगेगा सर्विसेज के लिए, है ना? हाँ, नहीं तो पैन तो एक ही है, वही पैन लगेगा। हाँ, ठीक 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 है, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल? लेकिन जो लोग आज वेबिनार है, सबको इनवाइटेड है नेशनल सेमिनार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 8 तारीख को कानपुर में नेशनल सेमिनार है, तो अगर और कोई क्वारी न हो तो सर, मैं मोहनचंद्र नायक बोल रहा हूँ सर। हाँ, ऑडिबल सर? हाँ ऑडिबल। सबको नमस्ते सर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा सर। अभी 34 AB में रजिस्ट्रेशन करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या है सर, थोड़ा जानना।
देखिए रूल्स तो वही है जो 10 साल का डिग्री है, डिग्री के 10 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल के बाद? हाँ 10 साल के बाद। जी सर। तो आप वहीं पे आपका असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जहाँ ऑफिस हो वहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन हमारे एक मेंबर ने अप्लाई किया था, तो उनको इनकम टैक्स में लेटर आई है, तो जो पहले नहीं मांगी जाती थी, तो होता वो डिप्टी कमिश्नर वो यहाँ की यूपी के यहाँ पे क्या नाम बरेली साइड की है, तो उनको ये मांगी गई कि आप जो है 3 गेजेट ऑफिसर का नाम बताइए और उनका रेफरेंस हमको दीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ही हमको दे। ये पॉइंट आज तक मेरे ख्याल में हम लोगों ने कभी दिया नहीं था, जहाँ तो हमारा तो मतलब 20-22 साल हो गया, मतलब 98 से मेरा है, तो होता है। लेकिन फिर भी ऐसा सामने कभी नहीं आया, क्योंकि अभी 6 महीना पहले भी हम मेंबर अप्लाई किया था, उसका हो गया था। लेकिन इसका जो है मेंबर का हमारा ये उन्होंने भेजा हमको लेटर, उसमें ये लिखा 3 गेजेट ऑफिसर आपको रेफरेंस होना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमको दीजिएगा, अगर जब पूछना होगा तो कोई क्वारी करना हम क्वारी करेंगे। दूसरा लिखा है कि आपका जो कितने साल से वैल्यूएशन काम कर रहे हैं और उसे क्या है आपका एक्सपीरियंस है। ये तो क्वेश्चन ठीक है, मतलब अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अपना जो सीनियर है उनके साथ करें, एक डाटा लगा देंगे। लेकिन मतलब गेजेटेड ऑफिसर का साइन अभी तो कोई ना मांग रहा था ना कोई कर रहा था, लेकिन अभी मांगी जा रही है, तो हो सकता है ये पॉलिसी हो। बाकी और कुछ नहीं, आप 10 साल तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो, हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जो बातें हो रही थी 30 बरेवी का रजिस्टर नहीं दी जा रही है, ऐसा है नहीं। कानपुर में भी बहुत लोग अभी नए हुए हैं, और हमारा ही 2 मेंबर अभी बरेली साइड की, उनका भी मेंबरशिप हुई है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और कुछ डाउट? मेरे ख्याल में और कोई किसी का सवाल नहीं है, तो मेरे ख्याल मीटिंग समाप्त की ओर जा रही। तो मैं हर्षी से कहूँगा कि हमारा ऑफिशिएटिंग जनरल सेक्रेटरी को इनवाइट करें वोट ऑफ थैंक्स के लिए। और हम इसी साथ ही एक्चुअली हमारा उपाध्याय का पापा का तबीयत खराब है, तो हम जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनका पापा का 10 तारीख को ऑपरेशन है, कि उनका पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाए, यही हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और तब तक के लिए हमारा उपाध्याय छुट्टी में चल रहा, तो ललित मिश्रा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे, और इनको ऑफिशिएटिंग एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज दी गई है। तो मैं कहूँगा अपना ऑफिशिएटिंग आज उनका पहला वोट ऑफ थैंक्स तो बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन आज ऑफिशिएटिंग जनरल सेक्रेटरी पहली बार वोट ऑफ थैंक्स आपको देंगे। सर थोड़ा सा और एक तो क्वेश्चन पूछना था सर जी। हम लोग का जो नेशनल सेमिनार होने वाला है नवंबर 9 को, जी 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 सर, उसमें मैं तो पेमेंट भेज चुका हूँ, तो उसका जो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा ना सर? वो आएगा, आप चिंता ना करो। अब हमें तो एक्चुअली जब अभी तो हमारे पास 10 या 12 आपको मिला के, आपको भी राजस्थान से 3 लोग जुड़ गए हैं, तो हमारे पास अभी 12 मेंबर अभी हुए हैं। जब 20-25 मेंबर हो जाएगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे, तो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते चला जाएगा। थैंक यू सर। अभी हम लोग लेकिन पिछले साल से इस बार थोड़ी चेंजेस कर रहे हैं, जो कानपुर में मेट्रो चालू हो गई, तो हमारा जो भी हम वेन्यू तय करेंगे वो डायरेक्ट कानपुर सेंट्रल से मेट्रो रूट में ही होगी, और इधर उधर नहीं करेंगे, ताकि आने जाने में कम से कम पौन घंटा नुकसान होती थी, वो नहीं होगी। अभी कानपुर मेट्रो स्टेशन से बैठेंगे, जो भी हमारा वेन्यू होगी हार्डली 15 से 20 मिनट आना, 15-20 मिनट जाना, तो इस समय का बर्बाद नहीं होगी। तो ये हम लोग इस बार ध्यान रखे हुए इस बात की, ताकि आने जाने में, क्यों टैक्सी में बहुत जाम लगती है, बहुत टाइम लगती है, इस बार वो चीज़ नहीं होगी। जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। इस बार मेट्रो रूट पे ही हम लोग वेन्यू तय करने जा रहे हैं, मतलब डिसाइड हम लोग किया। जी सर, वहाँ पे सर एकोमोडेशन के लिए आप उसका चिंता ना करिए। एक्चुअली पिछले बार भी हम लोगों ने IIT कानपुर में गेस्ट हाउस बुक करी थी, लेकिन इस बार वो नहीं करेंगे। जिनका रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट आएगा, उनके लिए हम बुक करेंगे। बाकी जो इमरजेंसी रेस्ट के लिए हमारे पास 3, 4, 2, 8, 10 लोगों का रहने का जुगाड़ होगी। रहने के इन द सेंस फ्रेश के लिए जुगाड़ होगी, वो एयर कंडीशन रूम होगी, उसके लिए हम चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको बुक इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। और अगर उसके बाद अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम IIT कानपुर में करेंगे, उसके साथ 1700 से 1800 रुपया उसका रूम रेंट है, लेकिन बहुत डबल बेड अच्छा मतलब पोजिशन है, तो पहले से मालूम होगा हम लोग बुक करा देंगे। लेकिन उसके लिए पिछले साल कुछ गेस्ट हम लोग पेमेंट दिया था, इस बार क्योंकि एक्सपेंस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इस बार हम लोग ने वो काम नहीं करेंगे। अगर जो हमारा इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स गेस्ट हाउस और हमारा UPTTI गेस्ट हाउस,
यूपीटीटी हमारा 4 कमरे हैं, 8 रूम की जो 8 के प्रोविजन है, और इंस्टीट्यूट में 2 लोगों का रहने का प्रोविजन है। तो हम तो 10 लोग अकाउंट करेंगे विदाउट पेमेंट। इसके बाद जो आएंगे तो कहेंगे तो उनके लिए भी मजबूरी है, पेमेंट चार्ज करनी पड़ेगी। अगर होटल में करेंगे तो वहाँ से 5-6 हज़ार रुपये रेंट पड़ेगी। लेकिन IIT भी हमारा मेट्रो रूट पे है, तो इसलिए IIT से वेन्यू जाने में भी आप मेट्रो जानी है, तो इसलिए IIT सस्ती भी है और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। होटल में रहने के बजाय IIT में गेस्ट हाउस में अच्छा होगी। लेकिन ये पहले से अगर हो जाएगी, मालूम हो जाएगी, तो हम सबके लिए IIT कानपुर में बुक कर दें, नहीं तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च में बुक करा देंगे। तो ये कोई समस्या नहीं है। हमें कमरा अच्छा, अगर होटल रहने का ऐसा शौक ना हो तो इंस्टीट्यूट में रहने से बहुत मजा आता है, तो कहीं ना कहीं बुक करते। रहने का चिंता आप करना बिल्कुल नहीं है, खाली पहले से हमको इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Harshit, Yes, sir. Yes, sir. please come. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, now I would like to invite Shri Lalit Kant Mishra ji, officiating General Secretary of AIBA, to deliver the vote of thanks on behalf of All India Welfare Association. Sir, over to you. थैंक यू सर। आज के वेबिनार में आए हुए सभी मेंबर्स का मैं आईबा की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ, और मैं अपने प्रेसिडेंट SS दास जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेबिनार का आयोजन करते हैं सर। थैंक यू सर। और अपने वाइस प्रेसिडेंट आईबा MK श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, कि उन्होंने जो है काफी अच्छा सर काम कर रहे हैं आईबा की तरफ से। और इसी में जो है मैं आज के चीफ गेस्ट सूर्य प्रकाश यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, कि उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं उनका उन्होंने ब्रीफ दिया, हम लोग को समझाया कैसे कैसे क्या चल रहा है। और सर आज के जो है स्पीकर मानिक गोसाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, कि उन्होंने जो है काफी वैल्यूएबल लेक्चर दिया। थैंक यू सर। और सुगाता सर जो है सुगाता विश्वास जी का भी मैं धन्यवाद कहता हूँ सर, कि उन्होंने जो है हम लोग के अंदर जो चल रहे हैं 34AB और IBBI का डिफरेंस जो चल रहा था कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो उन्होंने काफी अच्छी तरीके से हम लोग को समझाया सर। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वेबिनार में हम सब फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट।